Good morning, students. Today we discuss the long question answer of this chapter. What were the key controversies regarding development in India? The strategy of development early years realized two controversies in India. These include agriculture versus इंडस्ट्री. ठीक है, इट मीन्स कि क्या क्या विवाद क्या थे, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी इंडिया में स्टार्टिंग में. तो एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, डिबेट बिटवीन द प्लानर्स एज टू विच of these two given the priority in the planning, agriculture or industry. Few thought that were district increase industrial production, there could be no escape from the cycle of poverty. They argued that Indian planning did have a urgent strategies boost and the production of food grain. The state made law for the land reform and distribution of resource among the poor in the village. Besides, few also argued that even the government had spent more money in agriculture, it would not have uh, solved the massive problem of the rural poverty. नेक्स्ट है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट. बट द इंडियन मॉडल of mixed economy is criticized by the both left and right groups. India did not follow any of the two known path of development. It did not expect to political capitalist model of development, which development was left entirely to private sector. Nor follow the socialist model in which private property was abolished and all the production was controlled by the state. Uh, Elements from the both these models were taken and mixed together of India. That is why it was described as mixed economy. Much of the agriculture, trade and industry were left in a private hand. A mixed model like this was open to criticism from the both the left and the right. Criticized argued that the planners refused to provide sector enough space in a uh, uh, grow. Write a short note on the second 5 year plan. The second 5 year plan launched on the 1st April 1956. It was much bigger, broader, bolder plan than first. It was observed by the Planning Commission that the second 5 year plans has to carry forward to process inti initiated the first plan period. It must provide the longer increase production and the investment in employment. The principal task was to ensure the increase and the national income, but the 50% over the 5 year increase employment opportunity at the rate sufficient and labor force constant and the increase the population and the major stride forward the direction and the industrialization so as to prepare the ground for more rapid
advance in the planned period came. So students, these are the long question. Please, if you have any query regarding to this chapter, please uh, uh, you can contact evening in 4 to 5. Have a nice day. Good morning student. I hope you all are fine and safe at home. And as you all know that we are continuing our chapter 3rd, politics of plant develop, development, in which we discuss the short type of question answers which are very important according to your board classes. ठीक है? Which two models of modern development were there before India on the eve of independence? Which model did India decided to choose and why? ठीक है? At the time of independence, there are two models of modern development before India. Okay, टू टाइप्स के थे बेटा. ये देखिए जितने भी जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर एक बार रीड करना है और उसके बाद यू आर एबल टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. ठीक है? At the time of independence, there were two models of modern development in India. Liberal capitalist model, which was uh, prevalent in Europe and the US. Socialist model, which were prevalent in USSR. The socialist model of development was chosen because many of Indians were deeply inspired by this model. This included not only the leaders of Communist Party but also socialist leaders and the Congress Party. The model was considered to be the most useful for the welfare and the upliftment of the categories of people of India. So हमने क्या किया कि हमारे पास कौन कौन से मॉडल थे? दो मॉडल थे, बट हमने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया? हमने सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे लीडर जो हैं वो क्या थे? जो है इस आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. ना कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, बल्कि सोशलिस्ट लीडर एज वेल एज द कांग्रेस पार्टी के लीडर भी जो थे वो भी इससे इंस्पायर्ड थे. इसीलिए उन्होंने ये मॉडल चूज़ किया, क्योंकि इसमें वेलफेयर, इससे उनका ये मानना था कि ये यूज़फुल है. इंडिया में वेलफेयर के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है. ये हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा. इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज़ हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये जो है बहुत ज़्यादा सही रहेगा. ठीक है? सो वी अडॉप्ट अ सोशलिस्ट मॉडल इन for our development. Which state was prone to food crisis in the early year of independence? Bihar was prone to food crisis in the early years of independence. It was due to the near famine situation and the flood. Food shortage was very much acute in the district of Bihar. Food shortage led the acute in a widespread malnutrition, and the joining politics in government prohibited trade across state, which reduced the ability of food in बिहार. ठीक है? तो इसमें जब बहुत सारी सरकारों ने, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि वो जो अपने क्या कहते हैं फूड ग्रेन है वो दूसरी स्टेट में नहीं भेजेंगी, जिसकी वजह से बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन जो है ना वो शॉर्टेज आ गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन एनी टू मेरिट्स एंड द टू डिमेरिट्स ईच ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन.
ठीक है। देखो बेटा, मैंने आपसे हर बार बताया है कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं और कुछ उसके डिमेरिट्स होती हैं, कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। आप लोग हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे लिखते हो ना कि मोबाइल मोबाइल पे यूज़ है ना, उसके लाभ और हानियाँ लिखिए। इसी तरह एवरीथिंग। तो हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन देखो, कल ही हम लोग हमने 10th क्लास में पढ़ा था ना कि टेम्पल कहा गया था डैम्स को, बट उसके भी हमने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़े। मोबाइल आज के टाइम में कितना यूज़फुल है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते अब लाइफ में, है ना। मोबाइल इतनी ज़रूरत बन गया है, बट उसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं ना। वो डिपेंड करता है कि उस चीज़ को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है इस चैप्टर में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आप सब जानते हो 60 और 17 के मिड में जो है हम लोगों ने बहुत सारी जो है अपनी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए हाई क्वालिटी जो शीट्स थे उनको यूज़ किया, है ना। फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, है ना, तो ये सब यूज़ किए, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हो गई थी, हमारी जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई थी। बट इसमें भी हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके जिसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कहा, तो इसके भी ना इस क्वेश्चन में आपसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछी गई हैं। तो उन्होंने कहा है 2 मेरिट्स बताइए, 2 डीमेरिट्स। तो आपको बताना है इन इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ फूड इन अ कंट्री ड्यू टू द राइज इन व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन, रीजन लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिकेम एग्रीकल्चरली prosperous. The farmer of medium-sized holding were benefited and emerged in a political influential. इससे क्या है बेटा, 3 गिनवा दी हमने 2 की जगह। एक तो क्या था, इससे इंक्रीज़ हो गई, इससे खाने पीने की, वो तो आपको सबको ही पता है, राइस व्हीट प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें जो है जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ। इस एरिया में जो फार्मर्स थे, जो मिडिल फार्मर्स थे, वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस मिली। नाउ चांसेस डीमेरिट्स, है ना, डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम लोग। इट लेड टू पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस एंड रीजन। इससे क्या हुआ, पहली चीज़ कि बट गया, पोल्स बन गए डिफरेंट, है ना, अलग अलग क्लासेस के और रीजन्स के। ओनली द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बेनिफिटेड वाइल अदर्स रिमेन बैकवर्ड। इनसे आप इस तरह कह सकते हो कि कुछ स्टेट्स को इससे बेनिफिट मिला, बाकी सब पीछे रह गए। द पुअर फार्मर्स रिमेन निगलेक्टेड। इससे जो पुअर फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कोई बेनिफिट इससे नहीं मिला, ठीक है ना। तो इसमें कुछ ही लोगों को इससे बेनिफिट मिला और कुछ ही स्टेट को, ठीक है। और डिवाइडेशन जो है वो अलग हो गया, ठीक है। आ रही है ना इतनी बात समझ में। तो आप जो है इसको क्वेश्चंस को एक एक बार पढ़ते जाएंगे, और जो नोट्स हैं उनको आपने अगर कर लिया है तो आप सारा लिख सकते हैं, अगर आपने इस चैप्टर को रीड कर लिया और फिर आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आप ना इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ थर्ड 5-year प्लान। ठीक है, फर्स्ट 5-year प्लान में हम लोगों ने एग्रीकल्चर पर फोकस किया था, भाखड़ा नागल डैम और जो हीराकुंड डैम, है ना, ये सब किया। दूसरे के अंदर हमने इंडस्ट्री पे भी फोकस किया था, ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ के अंदर। नाउ थर्ड 5-year प्लान, द मेन ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ थर्ड 5-year प्लान वाज सेटिंग कोऑपरेटिव। हमने
कोऑपरेटिव मेकिंग सोसाइटी eliminate middlemen and ensure fair price to farmer to their प्रोड्यूस। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा होती है जिसमें कई फार्मर मिलकर कोऑपरेट के, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप जानते हो। तो डायरेक्ट जो अपना वो माल है वो मार्केट में सेल करते हैं। मिडिल मैन, पहले क्या होता था कि जो बड़े बड़े जो स्टॉक होल्डर्स कहते हैं ना जिसे, तो वो जो रिच पीपल होते हैं मार्केट में, वो लोग उसको ख़रीद लेते थे और उनसे कम पैसों में ख़रीद कर फिर उसका स्टॉक करके फिर वो आगे बेचते थे, तो वो लोग ज़्यादा मुनाफा कमा जाते थे। जो फार्मर होता है उसको नहीं मिलता था। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बनने से क्या हुआ कि जो मिडिल मैन है वो साइड पे हट गए, जिससे कि उनकी जो प्राइस है वो डायरेक्ट जो है किसान को ज़्यादा मिलने लगा। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फोकस किया और मिडिल मैन को ख़त्म किया, है ना, जिससे कि क्या हो सके, जो फार्मर्स हैं उनको अपनी प्रोडक्शन का जो है फेयर प्राइस जो है मिल सके। नंबर 2, expansion of agriculture production through intensive method of agriculture, use high yielding variety of seeds, improving irrigation facilities। और हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या किया न, मॉडर्न तरीके उसमें यूज़ किए, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स, है ना, और इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करके। फिर है टू इम्प्रूव द अपग्रेड द लोकल लाइफ स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड ब्रीड्स एंड कैटल, पिग्स, बर्ड्स एक्सेट्रा एंड एक्सटेंड वेटरनरी फैसिलिटी ऑल ओवर द कंट्री। हम लोगों ने जो एनिमल्स रेयरिंग होती है ना, उनको उन पर फोकस किया। जैसे बेटा पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, और आपका ये जो पिग रेयरिंग होती है, एनिमल्स, है ना, इस पे फोकस किया, है ना। जिससे क्या होता है बेटा, एग्रीकल्चर के साथ साथ जब जो फार्मर होता है ना, इनको भी रखता है, तो क्या होता है, उसकी जो इनकम है वो इम्प्रूव कर जाती है। जैसे कि आपने क्रॉप लगाई है, एज वेल एज आपके पास 5 एनिमल है जिनका जो आपने मिल्क जो है वो सेल करते हो, क्योंकि जो उसका कैटल फीड है वो आपके फील्ड में से ही निकल आता है, और आपको जो मिल्क है वो आपकी फैमिली के लिए भी यूज़ होता है, एज वेल एज आप उसको सेल करके अपनी इनकम को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये क्या था, ये जो लोअर जो फार्मर्स थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, पुअर फार्मर्स थे, पुअर पीजेंट्स थे, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये हम लोगों ने अपने थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर इसको हम लोगों ने यूज़ किया। एज वेल एज वेटरनरी फैसिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव करी। जैसे वेटरनरी का क्या होता है कि जो एनिमल्स के मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, वेटरनरी डॉक्टर सुने हैं ना आपने, जो एनिमल्स के डॉग्स हो गए, पिग्स हो गए, आपकी काऊ, बेफेलो, इनके लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं उन्हें कहते हैं। तो उस फैसिलिटी को इम्प्रूव किया जिससे कि एनिमल्स की हम लोग ब्रीड को इम्प्रूव कर सकें, और जो स्मॉल एंड पुअर पीजेंट्स हैं वो एनिमल्स रेयरिंग के थ्रू अपनी इनकम को इम्प्रूव कर सकें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो वेटनरी फैसिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाया और अपने जो पीजेंट्स हैं उनकी हेल्प करी। Provision of medical and health service with a view extending them to more people, especially those living in an interior region। मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव किया, हेल्थ सर्विस को बढ़ाया, स्पेशली उन एरियाज़ में जो लोग इंटीरियर्स में रहते हैं। बहुत से जो विलेजेस हैं बेटा, उस टाइम पर बिल्कुल उनकी कनेक्टिविटी नहीं थी। आज भी हम देखते हैं कि विलेज में हेल्थ फैसिलिटी इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है, पर ये ट्राई किया गया थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर कि जो इंटीरियर
में हमारे फार्मर्स हैं जो मैन रहते हैं उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडियाज लैंड रिफॉर्म पॉलिसी। अब जो है हमने अपनी लैंड को किस तरह से पॉलिसी को प्रमोट किया। लो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फोकस्ड इंडियन गवर्नमेंट टू bring out reforms. These are some of them. Change the ownership holding. Just a year after independence, steps were taken to abolish intermediary and make tiller, owner and land legislation were undertaken to immediately abolish जमींदारी and pass the land to the tenants। ठीक है, जो बच्चों हमने अपनी इंडिपेंडेंस के 1 ईयर बाद ही, क्योंकि बेटा आपने ब्रिटिशर्स को देखा था एज वेल एज मुगल्स को, तो जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, इसमें क्या होता था कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते थे और वहाँ का एक लैंडलॉर्ड बना देते थे, जो पुअर पीजेंट्स का जो है वो एक्सप्लोटेशन होता था। उसमें क्या होता था कि बस वो तो एक मॉनिटर जैसे बना दिया, वो उस एरिया से सारा टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके वो उन्हें देता था। तो उन्होंने क्या करा कि जो उस पर एग्रीकल्चर करते थे लैंड जो है उनको ट्रांसफ़र कर दी गई और जो है जमींदारी प्रथा को जो है ख़त्म कर दिया गया। लैंड सीलिंग, दिस वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इक्वलिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस मीन्स, है ना, सीलिंग का मतलब होता है, दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाई अ इंडिविजुअल। ठीक है, एक आदमी के पास मैक्सिमम कितनी लैंड होगी ये फिक्स कर दिया गया, है ना। द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड ओनरशिप विच वॉज जस्ट अ फ्यू हैंड। ठीक है, जमींदारी प्रथा होने से ये जो मुगल्स ने और ब्रिटिशर्स ने किया था उसको ख़त्म करने के लिए किया कि भैया किसी एक सिंगल हैंड में जो है वो लैंड ना रहे, वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना। लैंड बीइंग सो, कंजर्वेशन ऑफ लैंड मीन्स कंजर्वेशन ऑफ वेल्थ। ज़मीन इक्वली बटेगी तो क्या होगा, इससे हम सोशलिज्म जो है उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what were the major land reforms initiated by the government of India? Why some of these reforms became unsuccessful in India? The major land reform carried in India were abolition of zamindari system, consolidation of small and holding, and putting the upper limit of ceiling on the maximum amount of land one can press. Our reform could not be properly implemented in India because the landowners were very powerful and yielding a political influence. As a result, these land reforms were earlier not translated into law. When made into law, remained in a paper. Among the objectives identified, the independent India reform did not take place effectively. Among the objectives identified in India, land reforms were the third priority. Land reforms did not take place effectively in most part of country. Political power remained in a hands and hand owning class. Big industrialists
continue to benefit thieves, while the poverty was not eliminate completely. The earlier incentive for the planned development were best, and thus many proposals for the land reforms remained only on paper. They were never implemented. Wasted social groups effectively control policy making and its implementation. So these are the short question answers which are very important for the from the view of board point of view. Tomorrow we will discuss the long question answer of this chapter. Have a nice day, students.